So now, as you all know, today we have to discuss regarding how to prepare, how to approach your biology subject for your board exams. Now, as you are very well aware of, biology is completely theoretical subject. So biology may as such, at least for your board exams, you don't have anything like what you have in physics. There is no derivation, there are no mathematical calculations, nothing. Hardly thoda bahut mathematical calculation आएगा if you talk about chapter of genetics or maybe little bit in angiosperm, but those are very basic mathematical calculations. So biology में जो आपका पूरा focus है, first is obviously your focus would be on theoretical part, and second focus which we have been neglected, and in your case it has been neglected the most because of the lockdown and online studies, and that is the part of diagrams. डायग्राम का जो पार्ट है उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. Because of lockdown and online studies, we have not been able to do those diagrams physically. So we will discuss that in the course of lecture, that कौन से topics है, कौन से diagrams हमें discuss करने हैं, किसके ऊपर ज्यादा focus देना है, वो भी हम discuss करेंगे. So bio में your focus will be on two things, that is to prepare your theory part well, and second is practice as much diagrams as possible. जो भी important diagrams है, we will make a list of those diagrams, and then वो सब diagrams को you have to practice at least 3 4 times before you go for your exam. And then obviously classes के prelims में भी वो practice होगा आपका, so it will make you perfect by the time you appear for your final exams. Now, before we begin with the weightage and paper pattern, etc., let us first start with the most basic thing, that is the topics of 12th standard as per your new syllabus. This is the index of your textbook. Now, what we can do is, ये जो topics है, इसको we can classify them into 3 categories. That is medium or moderate, difficult and easy. एंड ये जो 3 कैटेगरीज में बोल रहा हूं वो दोनों बेसिस पे है, उसका ओवरऑल वेटेज के बेसिस पे भी है, और आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग हाउ मच पोर्शन हैज बीन डिलीटेड फॉर योर दिस ईयर्स एग्जाम. सो उसके बेसिस पे if I have to say this last 3 topics, that is the ecology part, is definitely easy topics. Like यहाँ पे in the 15th chapter, the whole environmental issue part is almost omitted. It's not there. So you have to focus only on biodiversity and conservation. Similarly, in ecosystem chapter, almost entire chapter is deleted except one specific subtopic. An organism and population chapter में hardly there is anything omitted. Most of the things you have to do. So ये जो पूरा यूनिट है जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 मार्क्स का है विद ऑप्शन, इसमें वी कैन कीप दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज एन इजी टॉपिक. और वैसे भी यहाँ पे ज्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट नहीं है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर थियोरेटिकल, यू जस्ट हैव टू मग इट अप. यस, देयर आर लॉट ऑफ डेटा हियर, देयर आर लॉट ऑफ इयर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. या तो आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रखने हैं, especially in organisms and population. काफी सारे वैल्यूज और एग्जाम्पल्स को याद रखना है, बट दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू मगिंग. सो ये एक 3 चैप्टर का यूनिट है विच कम्स अंडर इजी टॉपिक्स. देन next we can take up under easy topics is this 2 topic, that is plant water relation and plant growth and mineral nutrition. Now in normal course I would have called it as moderate,
But now because most of the things are deleted from this, especially from plant water relation, majority of things are deleted. और वैसे भी ओल्ड सिलेबस में दोनों चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के थे जो उन्होंने अभी 12th में शिफ्ट किया है. So ये दो टॉपिक को भी we can consider it as easy topics, as nothing much have to be studied from these two chapters. So out of 15, your 5 chapters are definitely very easy. इसके साथ में I will also add one more topic in this category, and that is your origin and evolution of life. Again, यहाँ पे most of the things have been omitted except the human evolution part. So again, there is nothing much to study here. इसके लिए we can call it as easy. And human health and disease. I know, I understand that this is a very big topic. इसमें से ज्यादा डिलीशंस भी नहीं है, फिर भी मैंने इजी में लिखा है बिकॉज ऑफ इट्स वेटेज. इसका ज्यादा वेटेज नहीं है. ये चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज हार्डली फॉर 3 मार्क्स. सो काफी बड़ा टॉपिक है, काफी सारा इसमें लर्निंग है, बट वेटेज इज ओनली 3 मार्क्स. सो इसको ज्यादा टाइम देने का या इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. So that's the reason I am putting it under easy part. So out of your total 15 topics, there are 7 topics which can be considered as easy topics. Either because most of the part has been deleted from there, or maybe because they don't have much weightage. So ये 7 टॉपिक्स ऐसे है जिसको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करके रखना है. ये 7 टॉपिक्स ऐसे है जो अगर आप एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, एग्जाम के अगले दिन इसको रिवाइज नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज देयर इज हार्डली एनीथिंग टू स्टडी इन दिस. सो दिस 7 टॉपिक्स यू शुड डू इट फर्स्ट. एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम यू कैन फोकस ऑन दिस 7 टॉपिक्स. नो डाउट इससे आपको ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है. आउट ऑफ 70 मार्क्स हार्डली इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट मेक श्योर दैट यू स्कोर ऑल फुल 15 मार्क्स इन दिस. सी व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स हैव दिस टेंडेंसी, ये इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी, ये सब बोरिंग टॉपिक्स है. आप रीड करने बैठोगे तो भी आपको मजा नहीं आएगा, एंड दैट्स द रीजन पीपल टेंड टू लीव दिस टॉपिक कि इसका वेटेज भी नहीं है, बोरिंग है, जाने दो, इसको छोड़ देते हैं, ऑप्शन में चला जाएगा. ऑप्शन में जा सकता है, बट देन सी टू इट दैट यू प्रिपेयर इट वेल, बिकॉज ज्यादा करने का नहीं है. और अगर कुछ ज्यादा करने का ही नहीं है तो आई नो दैट आई हैव टू आस्क क्वेश्चन. लाइक 14 चैप्टर में देयर इज ओनली वन 14.6 यूनिट दैट इज देयर. So if I have to ask some question from 14 chapter, obviously मुझे वही यूनिट में से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. अगर मुझे ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का एक क्वेश्चन पूछना है तो मुझे उसको ह्यूमन इवोल्यूशन से ही पूछना पड़ेगा. मतलब आपको मालूम है किसमें से क्वेश्चन आने वाला है, देन व्हाई नॉट प्रिपेयर वेल इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्शन इन एनिमल और प्लांट, जिसमें ऑलमोस्ट एंटायर चैप्टर है एक्सेप्ट वन सब टॉपिक. सो वहां पे मैं पूरा चैप्टर प्रिपेयर करूंगा, फिर भी मुझे मालूम नहीं है कहां से क्वेश्चन आएगा, तो उसमें अनसर्टेनिटी है. वेरएज यहाँ पे सर्टेनिटी है. ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ यू नो कि वो ह्यूमन के फॉसिल वाला ही कोई क्वेश्चन आने वाला है, देन व्हाई नॉट प्रिपेयर वेल. सो ये 7 टॉपिक्स जो है इसके ऊपर आपका मेजर फोकस रहेगा. दिस इज इजी टॉपिक्स. Now we go to topics which are moderate. Again, with respect to deleted portion or with respect to their weightage. Moderate topics के अंदर we can definitely consider enhancement in food production. This topic is also quite big, but again, lot of part have been deleted from this. बेसिकली ये एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो है
वो ओल्ड सिलेबस में 3 अलग अलग चैप्टर थे, उसको कंबाइन करके दे हैव मेड दिस वन चैप्टर. एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में देयर इज एनिमल हस्बेंड्री आल्सो. Enhancement में they have included enhancement chapter as well, and enhancement में they have also included tissue, the third part, that is microbes in human welfare. ये तीनों चैप्टर को उन्होंने कंबाइन किया. सो इसमें काफी सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें इसमें से डिलीटेड है फॉर योर पर्टिकुलर एग्जाम. So this is one chapter which can be considered as moderate. Another chapter which we can consider as moderate is your respiration and circulation chapter. Now this respiration and circulation is again combination of two chapters. यहाँ पे ये जो respiration है, that is your breathing and exchange of gases, and circulation chapter, that is body fluid and circulation. इसमें से भी रेस्पिरेशन पार्ट में से जो भी उन्होंने एडिशनल ऐड किया है ये साल, लाइक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और वेंटिलेटर, मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ये सब आपके पोर्शन में से डिलीटेड है. मतलब जो भी ये साल ऐड किया है वो उन्होंने डिलीट कर दिया. सो ओवरऑल दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल. एंड इन सर्कुलेशन ऑल्सो दे हैव डिलीटेड सम पोर्शन अबाउट ब्लड कंपोनेंट्स. So this is also one moderate chapter. Then we can also consider your biotechnology chapter as moderate. Biotechnology में भी as such there is not deletion, entire thing we need to do, but biotechnology का जो overall weightage है, that is less considering the length of the chapter. And many of you might feel that biotechnology is a difficult chapter, but if you see, if you go through question paper, past year के question papers देखोगे, you will realize कि इसके अंदर काफी सारे questions repeat होते हैं. Same type of questions have been repeated. So certain things like recombinant DNA technology या DNA fingerprinting है, या फिर पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसी के ऊपर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं. सो यू नो दैट विच टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी वेल फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी. सो ओनली फोकस ऑन दोज पार्ट एंड प्रिपेयर दोज पार्ट्स वेल. सो दिस 3 chapters we can consider them to be moderate because they have got little bit more weightage as well. Now obviously the difficult ones, now these difficult ones are for two reasons. One is they have a significant weightage, and second is they are significantly long chapters. और इसमें ज्यादा डिलीशन भी नहीं है, मतलब आपको पूरा पढ़ना तो पड़ेगा. सो इसमें certainly ये first 4 topics जो है, these are definitely difficult ones. दोनों रिप्रोडक्शन, प्लांट एज वेल एज एनिमल का रिप्रोडक्शन, इसमें हार्डली इनिशियल एक 1.1 2.1 यही डिलीटेड है, रेस्ट एवरीथिंग वी नीड टू डू. Inheritance and variation, full chapter you are supposed to do, and again inheritance and variation is combination of 2 chapters from old syllabus, that is genetic basis of inheritance as well as chromosomal basis of inheritance. ये 2 चैप्टर कंबाइन करके they have made this topic. And in molecular basis of inheritance, that is old syllabus का gene, its nature, expression वाला चैप्टर, जिसमें you study everything about DNA, about replication of DNA, structure of DNA, Watson and Crick model, then protein synthesis, transcription, translation, everything. And control and coordination, which is definitely one of the longest chapter we can say, like human reproduction. And this is again combination of 2 topics, that is nervous control and coordination and chemical control and coordination. So ये 5 चैप्टर में on an average you can consider हर चैप्टर का 5 मार्क्स का वेटेज.
सो अगर ये 5 चैप्टर अच्छे से करते हो, दिस विल फेच यू अराउंड 25 to 30 मार्क्स. इफ यू गो विथ ऑप्शन अराउंड 25 to 30, 32 मार्क्स आपको इसमें से मिल सकते हैं. सो रफली 45% ऑफ योर पेपर इज फ्रॉम दिस 5 टॉपिक्स. So now when you are preparing biology subject for your board exams, what you are going to do is, first, as I told you, you will finish those 7 easy topics first. इसमें से जो भी प्रिपेयर करना है वो डिलीटेड सिलेबस सामने रख के प्रिपेयर करना है. सो यू नो अननेसेसरीली वो रीड करने की जरूरत नहीं. आफ्टर यू फिनिश विद इजी चैप्टर, यू गो फॉर मॉडरेट वंस. Moderate ones are hardly 3. And once that is done, then you will go for difficult ones. Or difficult ones, I am telling you to do it in the end so that they are relatively fresh in your memory. और वो ऐसे चैप्टर्स भी है जिसमें हमें मैक्सिमम डायग्राम प्रैक्टिस भी चाहिए. सो इसके लिए भी वो डिफिकल्ट वंस आपको करना जरूरी है एंड में. इजी वाले चैप्टर्स में ज्यादा डायग्राम प्रैक्टिस ही नहीं है. सो देयर इज नो need to devote your much time for that. So जो भी आपका एफर्ट है वो तो ऑब्वियसली मॉडरेट और डिफिकल्ट में ही रहेगा, बट द ऑर्डर शुड बी फर्स्ट इजी, देन मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट. दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच. सो दिस इज द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू नीड टू फॉलो. दिस इज फर्स्ट थिंग. नाउ once you have decided the order in which you are going to study this subject, then obviously you should know sorry, next you should know what is the paper pattern or how you are going to answer, which type of questions are asked. Now to explain this paper pattern, what I am doing is I'll be taking an example of latest paper जो मार्च 2020 का पेपर था, उसी को हम एक बार देख लेते हैं. सो ना ये जो 2020 का पेपर है मार्च का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू रीड द इंस्ट्रक्शन, सेक्शन ए, question number 1 contain 10 multiple choice type question carrying 1 mark each. Now see, when you are answering, यहाँ पे उन्होंने specify किया है, when you are writing your answers of MCQ in your answer sheet, for each MCQ, correct answer must be written along with its alphabet. So when you are writing any answer, उसमें आपको सिर्फ वो आंसर या सिर्फ एबीसीडी नहीं लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड क्वेश्चन है, इंजरी टू डैश कॉजेज सडन डेथ. तो व्हेन यू आर राइटिंग दिस आंसर, आपके आंसर शीट में आप लिखोगे नंबर 2, उसके सामने सी और सी के बाजू में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. सिर्फ 2 में सी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, और सिर्फ 2 में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा. सो दिस इज द फॉर्मेट दैट दे डिजायर. You write down which is the correct alphabet and then uske samne you write its answer as well. Also, one very important thing for MCQ. In case of MCQ, evaluation will be done for the first attempt only. मतलब मैंने फर्स्ट टाइम गलती से या मुझे नहीं आता था आंसर, तो मैंने लिख दिया ए सेरिब्रम, और फिर आजू बाजू से कहीं से भी कॉपी करके मालूम पड़ गया है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होना चाहिए, सो ए सेरिब्रम को कट करके मैंने बाजू में लिखा सी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दैट. मार्क्स नहीं मिलेगा. दे विल कंसिडर माई फर्स्ट अटेम्प्ट का आंसर. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या लिखा था, दैट इज द ओनली इवेल्युएशन. आप दूसरा कितनी भी बार कट करके कोई भी आंसर लिखो, इट डज नॉट मैटर. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर MCQ ऑफ नीट. एक बार जो आंसर मार्क कर लिया, ऑप्शन मार्क कर लिया, वो फाइनल हो गया, देन यू आर नॉट अलाउड टू चेंज इट. सो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, and second is you have to write whatever is correct in your first attempt only. Second attempt is not allowed.
So this is for multiple choice question in section A. And there are total 10 marks. Now this is total marks that they have written here. And ये जो है वो individual marks है. For every correct answer you are going to get 1 mark. और ऐसे 10 questions है. And if you see the latest papers, you realize कि MCQ में भी they have started asking this diagram based question, जैसा नीट में आता है. So यहाँ पे diagram based questions भी पूछते हैं और ये इसके लिए obviously you have to refer to which diagram? You have to refer to GTB diagrams. So this is your section A का first question, 10 MCQs. And 10 MCQs में ideally we expect कि 5 botany, 5 zoo का रहेगा, but now you can see in your new textbook ऐसा botany zoo कोई section ही नहीं है. Everything is mixed. So you don't expect that. It can be randomly from any topic, anything. जरूरी नहीं है कि 5 botany, 5 zoo का रहेगा. ऐसा कोई separation अब नहीं है bio में. पहले था, पहले बॉटनी जूओ के सेक्शन अलग थे, यू नीड टू राइट दोस आंसर्स इन सेपरेट आंसर शीट्स, बट अब ऐसा कुछ नहीं है. नाउ इट हैज बिकम वन सब्जेक्ट बायोलॉजी. सो दिस इज योर सेक्शन ए का 10 मार्क्स क्वेश्चन 1, which is obviously scoring. You can score full 10 marks here, provided you follow those two things. Write down the correct alphabet with answer. And second, it has to be your first attempt answer. Don't do overwriting. Don't change your answer because anyways it's not going to give you any mark. Then after that, question number 2, answer the following questions, total 8 marks. And there are 8 questions given. That means each question will carry 1 mark. And these are certainly one-line questions. Very short answer questions. So here you have to write down answer in one statement only. They don't want descriptive answers. At the same time, you don't write only word. For example, ये second question in electrocardiogram, QRS complex stands for. So बोलो QRS complex in ECG will represent which phase of cardiac cycle? But इसके आंसर में I cannot write ventricular systole. If I do that, again it is a mistake. So I need to write that in electrocardiogram, QRS complex stands for ventricular systole. Again, ventricular systole नहीं लिखा, समझो मैंने ऐसा लिखा, in QRS electrocardiogram, QRS complex stands for simultaneous contraction of both ventricles. और simultaneous contraction of right and left ventricle. So ये है correct, answer correct है, but I may not get full 1 mark for this. You will get half mark. आपका half mark cut हो जाएगा because जो scientific term है वो आपने include नहीं किया. So you can't have an alternative terminology. जो biological term है, जो scientific term है, वो term उसमें आना ही चाहिए. You cannot alter that. Again आप देखो ये one line answer में भी it's like fill in the blanks kind of questions also, diagram वाला questions also. So सबसे पहले एक चीज अपने माइंड से निकाल दो कि बायो में जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस है, चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चंस है उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है. They can ask you question from each and every corner of your textbook, कहीं से भी पूछ सकते हैं. So it is nothing that only the question will come from text back questions. For example, यहाँ पे देखो लिखा है Lakshman has low secretion of ADH resulting in dash type of diabetes. So hyposecretion of ADH will cause which type of diabetes? Insipidus. So it has to be due to low secretion or hyposecretion of ADH. Lakshman is suffering from diabetes insipidus. So this way, complete statement you have to write in this particular section. That is question number 2. Don't just write one word answer.
If you do that, you may lose your marks. Then again, here if you see, identify A in the chart given below. So you know ये सब ऑब्जेक्टिव नीट टाइप के क्वेश्चन. सो यहाँ पे भी जब आप आंसर लिखोगे ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. इफ पॉसिबल इसको कंप्लीट करो, ऐसे ड्रॉ करो और फिर एक के जगह पे यू राइट डाउन योर आंसर एंड अंडरलाइन दैट आंसर एंड डिफाइन द टर्म रिसेसिव. So you have to specifically give definition which is given in your textbook. Definition और law, जो Mendel's law है, laws को you have to state as it is given. You can't alter the statement of a law. अपने word में आप कुछ भी statement नहीं लिख सकते हो. It might be correct. You know the meaning. You have understood it. But अगर statement proper नहीं होगा, then they will cut your marks. So see, 10 questions of MCQ and 8 questions of very short answer, 18 marks of section A. Total 18 marks out of 70 marks. So 18 out of 70 is almost 25% हुआ. 18 4s are 72. 25% आपका पेपर यहाँ पे कंपलसरी है. इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है. देयर इज नो इंटरनल ऑप्शन. 10 का 10 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करना है. 8 का 8 वेरी शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट करना है. और ये जो क्वेश्चंस है, इफ यू सी दिस क्वेश्चंस, दे विल मोस्टली आस्क यू फ्रॉम दोस इजी चैप्टर वाला पार्ट, मोस्टली. सो if you do not focus on those chapters, अगर वो chapters को आप easy है करके छोड़ दोगे, हल्के में लोगे, prepare नहीं करोगे, then there is a possibility that you will lose your marks because ये compulsory question है. यहाँ पे आपके पास कोई भी internal choice नहीं है. So this is your section A. Now next is section B. In section B, you can see it is 16 marks where they have written attempt any 8 of the following questions. They give you total 12 questions जिसमें से आपको 8 attempt करना है. So सीधा आपके पास 1/3 option है. 2/3 attempt करना है. 66% attempt करो, 33% option. And ये सब 2-2 mark के questions. Now when you go through this question, you will realize के 2-2 marks के question में, see this question number 3, sketch and label angiospermic embryos है. मतलब ये सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है. इट इज एक्सक्लूसिव डायग्राम वाला क्वेश्चन 2 marks. Similarly, question number 5, enlist the steps involved in rDNA technology. Now see, enlist मतलब you just make a list of the steps. उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है. They are not interested in all the details. जो भी स्टेप्स है उसको सिर्फ फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर देके. एनलिस्ट मतलब जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ इट. अगेन यू सी क्वेश्चन 7, फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा, that is of protein synthesis. So again they are just asking you that DNA which gives mRNA which gives protein, DNA to mRNA transcription, mRNA to protein is translation. इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है. 2 का 2 मार्क बहुत इजीली मिलेगा. But the thing is you have to write down what has been asked. अब यहाँ पे अगर मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर देता हूं फ्लो चार्ट के जगह पे, तो मुझे 2 मार्क नहीं मिलेगा. आंसर राइट हो सकता है, बट आई विल नॉट गेट मार्क्स. सेम वे इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 10, अगेन व्हाट दे हैव गिवन, मैच द पेयर. क्वेश्चन नंबर 11 आप देखोगे, दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक विच इज इनकम्प्लीट. नो डाउट ये अभी आपको है नहीं, रिफ्लेक्स आर्क ये साल डिलीट हो गया है, बट रीड्रॉ, कंप्लीट एंड लेबल द डायग्राम गिवन बिलो.
सो टेक्स्ट बुक का ये एक डायग्राम है जो उन्होंने इनकम्प्लीट दिया है, उसको आपको कंप्लीट करके लेबल करके ड्रॉ करना है फिर से. सो अगेन दिस इज अ डायग्राम क्वेश्चन, 2 marks. Again, you can see here, complete the following chart and rewrite. So you have to write down the same chart again. और उसमें जो आंसर्स आप लिखते हो आप उसको अंडरलाइन करोगे, सो एग्जामिनर विल नो दैट कौन सा आंसर था. यहाँ पे समझो मैंने आंसर लिख दिया, उसको अंडरलाइन नहीं किया है, तो पॉसिबल है आई विल लूज माय मार्क्स. सेम वे क्वेश्चन 14, अगेन ये साल ये आपके लिए डिलीट है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो दे हैव गिवन अ फ्लो चार्ट एंड दे हैव आस्क्ड यू टू कंप्लीट दिस. सो 2 मार्क के क्वेश्चंस में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड लाइक फ्लो चार्ट, डायग्राम और मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ थिंग. सी, अब वो बायो का पेपर पहले जैसे बायो का पेपर नहीं है, पूरा का पूरा थियरी पेपर. इट्स नॉट दैट, दे हैव चेंज द फॉर्मेट ऑफ लेट. काफी सारे चेंजेस किए और काफी सारी चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप्स की है. यहाँ पे इफ यू राइट इट इन गिवन फॉर्मेट दैट दे हैव आस्क्ड, यू कैन इजीली स्कोर फुल मार्क्स हियर. इसमें डेफिनेटली आपको 16 का 16 मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क आपका लूज नहीं हो सकता. So out of 12 questions that are given, you have to attempt any 8 questions in this. Any 8 question you can attempt. This is section B. Now, the challenging sections are section C and section D, which is 24 marks. That is section C and 12 marks का section D है. So almost 36. मतलब आपका हाफ पेपर है वो सी और डी है. अब ये 34 मार्क्स हो गया. ये 34 में कोई भी स्टूडेंट अगर प्रॉपरली अटेम्प्ट करेगा और सब प्रिपेयर करेगा, यू कैन स्कोर फुल 34 मार्क्स. ये नेक्स्ट 36 मार्क्स जो है सेक्शन सी और डी, इसमें आपको आता भी होगा, आपने प्रॉपर लिखा भी होगा, तो भी यहाँ पे पॉसिबल है दैट यू मे लूज हाफ 1 or 2 marks, because this is now more descriptive type of sections. So your aim should be कि मुझे सेक्शन ए और सेक्शन बी में 34 on 34 आना चाहिए. वो तो आपको स्कोर करना ही है, दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी. और उसके लिए वो सब इजी वाले छोटे छोटे टॉपिक्स वेल प्रिपेयर होने चाहिए, so that you don't miss out anything in that, especially in MCQ and one line answer, because there you don't have any option. अब यहाँ पे अगर आप देखो ये 13 क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आपको नहीं आएगा. यहाँ पे यू माइट गेट कंफ्यूज कि ये कौन सा स्पीशीज है, ये कौन सा है, बट इसको आप छोड़ सकते हो बिकॉज ये सेक्शन बी में है. अगर यही क्वेश्चन सेक्शन ए में आता, then you don't have option of leaving it. You have to attempt it, and then if you are wrong, you will lose your marks. So that's the reason I told you कि वो easy वाले chapters को अच्छे से prepare करो, so that you don't lose any marks there. Now, when we go to section C, there are again 12 questions given, out of which you attempt 8 questions. Only difference is now each question has got 3 marks weightage. And when we come to section C, again importance of diagrams will come. सेक्शन ए और सेक्शन बी में हमने देखा 2 क्वेश्चन था जिसमें आपको स्पेसिफिकली डायग्राम के बारे में पूछा, यू हैड टू ड्रॉ डायग्राम. बट सेक्शन सी और सेक्शन डी में दे मे नॉट आस्क यू स्पेसिफिक डायग्राम. ऐसा बोलेंगे नहीं कि आप ड्रॉ करो, फिर भी आपको ड्रॉ करना है. You have to understand and you have to do it wherever it is necessary. जहां पे भी necessary होगा आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है. So section C में if you see the questions, the pattern of questions that comes under this, इसमें again you can see यहाँ पे match the column kind of thing they have given.
one section is given, one side columns are given and you have to fill up second one. So obviously this is like objective और ये आपको attempt करना ही है. ये type के questions definitely हमें attempt करने हैं so that we can score maximum marks here. And this year they might put more objective questions. Because of this pandemic, they are going to make your paper definitely easy. And one of the way to do that is by putting more and more questions which are objective types so that you can score more marks. Then see again question number 18, you can see what they have done. They have picked up a diagram from your textbook which is incomplete and they will ask you to complete it. Again, question number 19. See, this is a practical example which they have asked you. It is not direct question, but this is something where you need to explain the inheritance of color blindness. So जो हमारा X-linked inheritance है, जो zigzag inheritance है, वही आपको यहाँ पे explain करना है. और again यहाँ पे mention किया है with suitable chart. Then distinguish between DNA and RNA. Now, when you get such question, distinguish between. If it comes for 2 marks, how many points are expected? For 2 marks, distinguish between, you have to write down 4 points. And this 4 point does not include examples. Remember, examples are non-evaluative. आपको लिखना है, आप लिखो. But वो आपका 5वां point होना चाहिए. That is not counted for evaluation. And very rarely it may happen that distinguish में 2 मार्क के लिए पूछा और उसमें शायद 2 ही पॉइंट है या 3 ही पॉइंट है, 4 पॉइंट है ही नहीं. इन दैट केस आपको 2 पॉइंट का 2 मार्क मिलेगा. सो ऐसा नहीं है कि अगर 4 पॉइंट नहीं है तो उसको मैन्युफैक्चर करना है, क्रिएट करना है. डोंट डू दैट. Similarly, DNA RNA. Now DNA RNA 3 mark question, so obviously 6 point. और इसमें तो बहुत सारे points है. So again, if I am a student, I am going to attempt this question, DNA RNA. I am not going to attempt this question 20th. That is dairy management. Anyways, आपके केस में वो deleted है. But ये मैं attend नहीं करूँगा because इसमें if I miss something, skip something, there is a possibility I may lose half mark. Then again, if you see this one, 23rd, microbial source of following thing. So you just have to write down the name of microbes from which they are obtained. Again, if you name all the 3 correct, you get full 3 marks. So इसमें आपका कोई mark lose होने का chance ही नहीं. When question is in the format of significance, significance means you have to write down 6 points again for 3 mark question. You have to write down 6 significance of respiration. Then अब ये क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब ये क्वेश्चन सेम वे फोटोसिंथेसिस में पूछना है तो बट एनीवेज फोटोसिंथेसिस तो अभी 11 में गया. हियर एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिंस इट इज फॉर 3 मार्क्स I will explain the process and then I will write down the equation form also. मतलब उसको मैं चार्ट फॉर्म में भी लिखूंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. और अगर यही चीज मुझे 2 मार्क क्वेश्चन में आता है देन आई मे नॉट राइट बोथ. फिर मुझे डिस्क्राइब करने का और उसको चार्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट फॉर्म में लिख के भी चलेगा. So whether question has come for 2 marks or 3 marks, accordingly you need to make changes, you need to make variation. So अब ये आपको on the spot decide करना है कौन से टाइप के क्वेश्चन है, for what marks it is, 2 or 3. Again, ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, we cannot attempt such question because इसमें आप जो भी लिखोगे वो कम ही पड़ेगा. इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है और वो टाइम पे यू मे स्किप सर्टन थिंग. सो ऑलवेज देयर इज अ स्कोप के एग्जामिनर यहाँ पे आपका हाफ मार्क 1 मार्क कट करेगा. सो व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट
that which type of questions you choose to answer. And needless to say, biology में हो सकता है उतना objective type का match the column, fill in the blank, significance, distinguish between, हो सकता है वैसे वही type के questions को attempt कर. Then obviously अगर एक आध दो theoretical करना पड़े तो ठीक है, otherwise try to avoid that. And if you go through all these questions, इसमें आप देखोगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है, एक भी क्वेश्चन नहीं. ये सब क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी उन्होंने ऐसे पूछे जिसमें डायग्राम्स आर नॉट रिक्वायर्ड. And then finally section D, which is for 12 marks, any 3 questions out of 5. So again you have good 40% of options and you attempt any 3 questions, 4 marks each. Now इसमें definitely ये section lengthy भी होगा उसके marks के हिसाब से. This will take more time. So out of your 3 hours of time, I would say at least try to keep 45 minutes to 1 hour for section D so that you can write it nicely. Because यहाँ पे जैसे first question है, sketch the internal structure of human heart. अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, label all the valves present in it. सो वो इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके फिर सुपीरियर वेना कहवा, इंफीरियर वेना कहवा, ये सब टाइम पास करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. They have only asked you to label the valves which are present in it. So just label tricuspid, bicuspid, semilunar, aortic semilunar and the other one, that is pulmonary semilunar. जो पूछा है वही लेबल करो. You can label Thebazian valve, you can label inferior vena cava का जो valve है. So just be to the point. What is asked, you have to answer that. And then mention the function of any one valve in the heart. कोई भी एक valve. Ideally कोई भी valve होगा, function तो same ही रहेगा. क्या होता है कोई भी valve का function? To prevent backflow of blood. अब आप जो भी valve लेते हो उसके हिसाब से खाली उसके chamber का नाम लिख दो. For example, if I am writing about bicuspid valve, I will say it prevents backflow of blood from left ventricle to left atrium. That's it. So this is one question which you can definitely attempt. Because भले इसमें diagram आपको पूछा है, but उसके साथ के जो questions है वो बहुत easy है. And ये जब questions आता है diagram वाला, इसमें और एक important चीज है that what is the weightage for drawing and what is the weightage for labeling. Always remember, drawing का weightage is less, label का weightage is more. 25% weightage is for drawing and 75% is for labeling. But आपको लेबल का मार्क्स वो 75% मार्क्स कब मिलेगा, जब वो 25% काम आपने ठीक से किया है. अगर डायग्राम करेक्ट होगा, उसका प्रोपोर्शनेट होगा, तो आपको बाकी 75% मार्क्स मिलेगा. जैसे मैंने आपको सिखाते टाइम भी बोला था, वेरी सिंपल एग्जांपल व्हिच आई गिव ऑलमोस्ट टू एवरीवन, टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड, histology of thyroid gland. When you draw that diagram of histology of thyroid gland, it is very simple. उसमें कुछ नहीं करना है, आपको thyroid follicles draw करना है और ये thyroid follicle के अंदर you are supposed to draw an epithelium which should be cuboidal epithelium. Now this is where many students make mistake. वो जल्दी जल्दी ड्रॉ करने में उसमें ऐसा एपिथेलियम बना देते हैं. ये कौन सा एपिथेलियम हो गया? स्क्वामस हो गया. Which means your thyroid gland is undergoing hyposecretion. ये hypothyroidism हो गया और hypothyroidism is pathology and not histology. ये normal gland नहीं है, तो आपको 0 मार्क मिलेगा इसका.
या तो कोई कोई लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, ड्रॉ करते करते इसका बना देते हैं कॉलमनर, एंड कॉलमनर मीन्स इट बिकम्स हाइपरथायरॉयडिज्म व्हिच इज अगेन एब्नॉर्मल. सो ये डायग्राम में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें क्यूबॉइडल सेल्स आप बनाओ. डोंट मेक स्क्वेमस और कॉलम, अदरवाइज यू डोंट गेट मार्क्स. लेबल का भी मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा मार्क जाएगा. सो एवरी डायग्राम में ड्राइंग का मार्क्स वेटेज वाइज, मार्क्स वाइज उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट लेबल का मार्क तभी मिलेगा जब आपका ड्राइंग करेक्ट हो. सो इसके लिए ड्राइंग का मार्क्स, आई मीन ड्राइंग आपका प्रोपोर्शनेट होना जरूरी है, और वो भी प्रोपोर्शनेट चाहिए. वी डोंट नीड आर्टिस्टिक ड्राइंग. They don't expect artistic drawing. What they require is it has to be proportional. Then other questions, like here you see, with the help of suitable diagrammatic representation, explain HSK pathway. See, they have written diagrammatic representation, मतलब they expect you to draw the cycle HSK pathway. और ड्रॉ करने के बाद आगे लिखा है एक्सप्लेन द पाथवे, मतलब आपको इसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा. आपने जो साइकिल में ड्रॉ किया है वही चीज को पॉइंट बाय पॉइंट 1 2 3 4 फॉर्मेट में एक्सप्लेन करो. एचएस के पाथवे तो यू नो, प्रोसेस बिगिंस इन मीजोफिल सेल, देन इट कंटिन्यूज इन बंडल शीथ एंड रिटर्न्स बैक टू मीजोफिल. सो ये सब यहाँ पे डिस्क्राइब करना जरूरी है. खाली साइकिल ड्रॉ करके आ गया आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. अच्छा, मैंने साइकिल ड्रॉ कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया, अभी भी मेरा मार्क्स कट सकता है. इफ आई एम गेटिंग 70 फुल मार्क्स, chief moderator will cut my half or 1 mark if I don't write significance of HSK path. आप बोलोगे इसमें पूछा ही नहीं. नहीं पूछा है फिर भी आपको लिखना है. एटलीस्ट राइट 2 पॉइंट, नॉट मच. 2 पॉइंट भी लिख के आओ. इट वोंट टेक मच टाइम. So if you want full marks, if you are expecting marks above 65, then these are the things which chief moderator will see. So your paper has to be absolutely perfect. तो ही आप expect कर सकते हो 65 के ऊपर. और वो आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता है. With the format and type of questions they are asking, you can definitely get full marks. 70 भी आ सकता है. Then next, if you see प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ, देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, विद द हेल्प ऑफ 4 सिक्वेंशियल डायग्राम्स. दे नीड 4 डायग्राम. जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिए है वो फर्टिलाइजेशन के चारों 4 सिक्वेंशियल डायग्राम उनको चाहिए. अब ये क्वेश्चन को अवॉइड करो, डोंट अटेम्प्ट, बिकॉज वो 4 डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे और उसमें मिस्टेक होने का या मार्क्स कट करने का डेफिनेटली उनके पास स्कोप है. सो अवॉइड दिस. डेफिनेटली फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वर मच सिंपल एज वेल एज मोर स्कोरिंग. खाली सिंपल नहीं, स्कोरिंग भी था, हमें वो भी देखना है. देन क्वेश्चन 30, व्हाट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो again, I think this part is deleted this year, but otherwise again this is a question which should be avoided. No need to do this. Last one जो है, system associated with elimination of urine with the help of neat and label diagram. So you have to draw that diagram of entire excretory system starting with kidney, ureter, urinary bladder and urethra. एनीवेज अभी ये चैप्टर भी आपका है नहीं, 11 में चला गया, बट ये टाइप का मिस्टेक नहीं होना चाहिए. सो दे आर नॉट आस्किंग यू स्ट्रेट अवे क्वेश्चन. पहले क्या पूछते थे, स्केच एंड लेबल और डिस्क्राइब एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, सीधा क्वेश्चन था. बट नाउ दे आर नॉट डूइंग दैट, और ये करने में ही कंफ्यूजन होता है. बहुत लोग वो हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बहुत लोग नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं. Nephron is not a system. Nephron is a cell which is associated with elimination. वो भी पूछ सकते हैं. So understand the question what they have asked you.
Same problem happens in heart also. When I say internal structure of heart, मतलब आपको कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है जो सेक्शन ऑफ हार्ट का है, वो एलएस ऑफ हार्ट, जिसमें हम अंदर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व फिर वो कॉर्डेट टेंडिन है वो सब दिखाते हैं. और एक क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या तो वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट. वहां पे यू आर सपोज टू ड्रॉ विच डायग्राम, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाला जिसमें कोरोनरी साइनस और कोरोनरी आर्टरी उसके ब्रांचेस वो सब हम दिखाते हैं. सो कौन सा क्वेश्चन पूछा है और उसमें क्या आपको आंसर करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अदरवाइज यू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, यू राइट. एक तो वो पूरा आंसर लिखने में तेरा टाइम जाता था और अल्टीमेटली आता था उसमें 0. And this is what we have observed. Past में हुआ है ये. We have seen students writing completely wrong answer. So please don't make that mistake. और इसमें सेक्शन डी में यू डेफिनेटली एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 में से एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जिसमें आपको डायग्राम और डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा. यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है. देखो इसमें भी डायग्राम पूछा है, इसमें भी डायग्राम है, इसमें भी डायग्राम. And here also if you do, they expect you to draw diagram for cutting and budding. मतलब यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में आपको डायग्राम के साथ ही उसका आंसर देना है. And at least out of 4 marks, 2 marks weightage will go to diagram, जिसमें half mark to draw and 1.5 mark to label. And if they have asked you some specific labeling, जैसे वहां पे पूछा है label all the valves present, then you stick to that. अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा है और अगर आपको समझो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ही लिखा था, कुछ लिखा नहीं है, स्केच एंड लेबल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. सो आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, व्हेन यू आर labeling, just don't write those foolish labelings like right atrium, left atrium, right ventricle. ऐसे फालतू लेबल मत करो. Do some label which are important. थोड़ा बहुत उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ऐसे लेबल करो. So this is your paper pattern. This is what you have to follow, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी 34/34 आना ही चाहिए. And section C में भी, if you go by this last year's paper, section C also seems almost like objective kind of thing. The only problem, the only place where you can lose maybe 1 or 2 marks is your section D. यहाँ पे अगर क्वेश्चन का सिलेक्शन वाइजली करोगे तो शायद इसमें भी आप फुल स्कोर कर सकते हो, नहीं तो एक आध मार्क जाएगा तो आपका सेक्शन डी में ही जाएगा. Otherwise, the full paper is almost scoring. So have an aim of 70 marks. Don't think कि bio theory subject है इसमें 70 आ ही नहीं सकता, आ सकता है, because almost सब objective type का questions आता है. ये सब पहले नहीं आता था. इनकम्प्लीट डायग्राम देके कंप्लीट करो, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आता ही नहीं था. दिस ऑल दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम सिंस लास्ट 2 years. So this is your paper pattern, new paper pattern. 10 marks MCQ, 8 mark one line answer, 12 marks का 16 marks का short answers, 24 marks का long answers और 12 marks का very long answers. और 3 और 4 मार्क वाले क्वेश्चन में जहां पे भी डायग्राम होगा आपको ड्रॉ करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने पूछा है या नहीं पूछा है. नहीं पूछा होगा तो भी आपको ड्रॉ करना है. एंड कशिश, योर डाउट अबाउट कैन वी राइट सेक्शन डी फर्स्ट. सो रिमेंबर, यू कैन राइट एनी सेक्शन. सेक्शन ए बी सी डी आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो. There is no problem in that. But please see to it that whenever you write any section, you start from a new page. That is number 1. Section A मैंने लिखा, फिर आधा पेज में खत्म हो गया, उसके ऊपर सेक्शन B लिख के शुरू हो गया, ऐसा मत करो. Section, every new section has to start on new page. Number 2,
every new answer should start on a new page. क्वेश्चन न्यू आंसर का मतलब क्या? न्यू आंसर का मतलब अगर आप समझो क्वेश्चन 1 है जिसमें हमने देखा क्वेश्चन 1 में सब एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म होने के बाद क्वेश्चन 2 उसके नीचे स्टार्ट मत करो, वो पेज पे जो भी जगह बचा हुआ है उधर क्रॉस मार दो एंड गो टू नेक्स्ट पेज एंड स्टार्ट क्वेश्चन 2। बिकॉज आपने 10th का एग्जाम दिया है, आपको मालूम है हर पेज के ऊपर वो उनका क्वेश्चन नंबर और मार्क्स का कॉलम होता है जिसमें दे हैव टू राइट डाउन देयर मार्क्स, क्वेश्चन वाइज उनको मार्क्स लिखने होते हैं, फिर वही मार्क्स उनको फर्स्ट पेज पे भी लिखने होते हैं और फिर टोटल मारना होता है। सो डोंट मेक कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम, आधा क्वेश्चन इधर आधा उधर ऐसा सब मत करो, और क्वेश्चन 2 के सब आंसर साथ में ही लिखो। इफ यू डोंट राइट, यू डोंट नो एनी आंसर, लीव सम स्पेस एंड गो अहेड। डोंट डू के अभी क्वेश्चन 2 का 6 क्वेश्चन इधर लिख लिया, 2 नहीं आ रहा है बाद में लिखूंगा, ऐसा सब वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करोगे तो मिस्टेक होगा एंड देन they will not give you marks. So don't do that. Don't irritate examiner. उनको हार्डली कुछ पैसा मिलता है पेपर चेक करने का, इरिटेट मत करो। एंड पूर्वेश, एग्जाम्पल्स के लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इट डिपेंड्स लाइक व्हाट यू आर आस्किंग मी, बट जनरली अवॉइड दैट। हो सके तो जीटीबी वाले एग्जाम्पल्स ही दो, बिकॉज उनके पास जो सोल्यूशन होगा उसमें ऑब्वियसली जीटीबी का ही एग्जाम्पल्स होगा। एंड अगर कोई प्रोफेसर को उतना नॉलेज नहीं है और वो समझो एग्जाम्पल्स जो आंसर में दिया है वही लिखना चाहिए, तो वो मार्क्स कट भी कर सकता है। एंड वी कांट आर्ग्यू बिकॉज यू विल नेवर नो व्हाट दे हैव डन। सो हो सके तो स्टिक टू गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, डोंट राइट एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। क्लियर? Okay, now next is क्या डाउट है? साक्षी, ब्रेन पावर, इंटरनेट माय फ्रेंड, डू यू नो, ये सब वाले जो बॉक्स के क्वेश्चंस है दे आर नॉन इवेल्युएटिव पार्ट। वो नॉन इवेल्युएटिव है, उसमें से दे वोंट आस्क यू क्वेश्चन इन योर एग्जाम, दे डोंट हैव एनी इवेल्युएशन, सो उसकी जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर योर एडिशनल नॉलेज, सो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दैट। बट जितना टेक्सचुअल मैटर है वो सब में से आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो वो आपको करना पड़ेगा, यू कैन लीव दैट पार्ट। ओके, नाउ इफ वी सी वेटेज वाइज, then your unit 1 which is reproduction part, दोनों plant और animals का, this obviously has second highest weightage, after that physiology। so यहाँ पे आपको टोटल 12 मार्क्स है कंपलसरी और 16 मार्क्स है विथ ऑप्शन। so we can just consider with option wala mark, matlab this is what maximum you can attempt from these two chapters, and that's why we have put it in the difficult level। no doubt chapters are also difficult, plus they have got very high weightage also। similarly जो next unit है, अब ideally इसमें जेनेटिक्स में ये दो चैप्टर्स है जेनेटिक्स का जिसका 4 मार्क्स का वेटेज है, और उसके बाद में जेनेटिक्स का और एक चैप्टर जो है वो आपका यहाँ पे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी विच हैज 5 मार्क्स वेटेज। सो 4 and 4 8 plus 5 13, and with option if you see then it is 12 and 7 19। सो इसका भी वेटेज जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर का वेटेज अगर आप काउंट करोगे इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्शन। ये 12 और 16 था और ये 13 और 19 है। सो आपका रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स वाले जो 3 और 2 5 चैप्टर्स है
ये 5 चैप्टर मिला के आपका ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का पेपर हो जाता है. 33% पेपर is from this 5 chapters. And then the other topics like origin evolution is only 4 marks. But now see, ये साल आपके लिए ओरिजिन इवोल्यूशन में से आने वाला क्या है, सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन, और उसके लिए 4 मार्क्स का वेटेज है कंपलसरी और 6 मार्क विद ऑप्शन है. मतलब आप समझ लो आपको 2-3 फॉसिल्स का कैरेक्टर या डिस्टिंग्विश बिटवीन एप एंड मैन, ये टाइप के क्वेश्चन 100% आएंगे. दे विल डेफिनेटली आस्क यू अबाउट क्वेश्चंस ऑन एमसीक्यूज. एमसीक्यू में इसमें से आएगा बिकॉज 4 मार्क का क्वेश्चन पूछना है. सो प्लीज रिमेंबर दिस. ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है. कम एफर्ट करके आपको इसमें ज्यादा मार्क्स मिल सकता है. देन नेक्स्ट इफ यू सी, इट इज plant water relation, plant growth. Again, see the weightage 5 and 5 10 marks. इसको कंपेयर करो रिप्रोडक्शन से, 6 और 6 सिर्फ 12 मार्क्स है. और इसमें कितना पढ़ाई करना है और इसमें कितना करना है. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिलीटेड. सो हार्डली देयर इज समथिंग विच यू नीड टू स्टडी. और उसके लिए आपको 10 मार्क और विथ ऑप्शन जो है 14 मार्क्स हो रहा है. सो जस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक. Respiration and circulation 7 marks, single chapter 7 marks, and control coordination 8 marks. Certainly respiration circulation is much easy compared to control coordination. So अगर मैं respiration circulation को अच्छे से prepare करता हूं तो मैं 10 marks तक attempt कर सकता हूं. Control coordination I can easily leave it in option. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज काफी बड़ा चैप्टर, बट विद ऑप्शन ऑल्सो वेटेज खाली 4 मार्क का है. वेरेज उसके सामने ओरिजिन इवोल्यूशन में कुछ नहीं करके वेटेज मेरा विद ऑप्शन 6 मार्क हो जाता है. सो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन अगेन काफी बड़ा चैप्टर है, बट नो डाउट मोस्ट ऑफ देम थिंग्स आर डिलीटेड. सो फॉर यू इट इज ओके, मॉडरेट चैप्टर. Biotechnology, as I told you, 5 or 7 marks. So this is again one important chapter. With less effort, you score more marks. और ये तीनों में तो 14 चैप्टर में वो एक ही सब टॉपिक में से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा. तो एक्सपेक्ट 1 MCQ और 1 लाइन और उसके साथ में कोई 2 मार्क का क्वेश्चन. सो 14 चैप्टर में भी आप हार्डली कुछ पढ़ोगे और आपको 3 मार्क मिल जाएगा. So if you focus on chapter number 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, these are 5 and 4 9 chapters. और ये 9 chapters में से कितना मिलेगा आपको, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया और ये हो गया आपका 25. 55 मार्क्स. ये 9 चैप्टर. एंड आई एम टेलिंग यू, आप इसके डिलीटेड पोर्शन को कंपेयर करोगे, ये 9 चैप्टर लर्न करने में आपको शायद 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा. 3 दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं. 55 marks you will be able to attempt out of 70. You can imagine, आप दोनों रिप्रोडक्शन छोड़ रहे हो, आपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज छोड़ दिया, जेनेटिक्स में जेनेटिक बेसिस, क्रोमोसोमल बेसिस, डीएनए सब छोड़ दिया, और फिर भी आप 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हो बायो में, जस्ट फ्रॉम दिस 9 चैप्टर्स, जिसमें लिमिटेड पढ़ाई करनी है. So this is an additional advantage for you this year. ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है. नॉर्मल कोर्स में आई वुड हैव टोल्ड प्लांट वाटर रिलेशन इज डिफिकल्ट.
प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन डिफिकल्ट। अभी मैं इजी बोल रहा हूं बिकॉज इसमें से सब डिलीट हो चुका। सो आपके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये 9 चैप्टर के ऊपर फोकस करो, इसको पहले प्रिपेयर करो एंड देन यू गो फॉर रेस्ट। आई एम नॉट सेइंग उसको छोड़ दो, वी हैव टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, बट वहां पे आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा और रिटर्न कम मिलने वाला। Whereas यहाँ पे आपको कम एफर्ट में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। प्लस आप देखोगे ओरिजिन इवोल्यूशन देयर इज नो डायग्राम, प्लांट वाटर रिलेशन नो डायग्राम, प्लांट ग्रोथ देयर इज नो डायग्राम, एनहांसमेंट में हार्डली देयर इज एनी डायग्राम, बायोटेक में है डायग्राम्स, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी हार्डली कुछ है। देयर आर नो डायग्राम्स इन ऑल दिस चैप्टर except that biotech and respiration and circulation. So it is very easy to score. So only thing is you have to plan it in such a way that you have proper focus effort. And bio exam के पहले एटलीस्ट एक दिन का छुट्टी तो मिलता ही है। जनरली 2-3 दिन का मिल जाता है, बट एटलीस्ट एक दिन का छुट्टी होता है। सो वन डे में यू कैन इजीली रिवाइज ऑल दिस एंड अभी तो बायो का 12th का पोर्शन भी कम हो गया है, सो यू कैन इजीली डू दैट। So this is your weightage of individual chapters. Now, finally, we will see what are the important diagrams that you need to do. So, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, that is 1.4a TS of anther. That is one diagram which comes in your exam as sketch and label. You need to draw this diagram and label important layer. So this is one that you will focus on. Next diagram is this 1.5 development of male gametophyte. In this development of male gametophyte, you will draw A diagram, B diagram, and then F diagram. A, B और F. बीच का CD को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, A, B और F. A वाले में यू आर शोइंग पोलन ग्रेन विद सिंगल न्यूक्लियस, B में दोनों सेल वेजिटेटिव जनरेटिव, और D वाले में यू आर शोइंग 2 मेल गैमेट्स विद degenerating tube nucleus. Then obviously 1.6 is important, anatropous ovule का diagram. 1.7 development of female gametophyte. You have to draw this entire diagram ऐसे ही cycle के form में to show entire development of embryo, sac or female gametophyte. Then pollination में nothing is expected to draw. Again, this they won't ask you to draw porogamy and all those things. Double fertilization 1.13. This is again you need to draw, you need to show pollen grain germinating with pollen tube. And endosperm ka development. So endosperm development, this is type of endosperm. So तीनों nuclear, cellular, halobial ये सब diagram draw करना पड़ेगा. Embryo development 1.15. 1.15 के अंदर you have to draw all these diagrams. इसमें सब लेबल उन्होंने शॉर्ट में दिया हुआ है. इसमें यू में ड्रॉ ए बी सी डी ई और फिर जी वाला. अगर एफ और एच नहीं किया तो चलेगा. मेज का सीड
This is also important, 1.18. Then here obviously TS of testes and male reproductive system, ये दो diagrams है. फिर female reproductive system is one, and histology of testes, sorry ovary. और मैंने आपको बोला था पढ़ाते टाइम भी कि हो सके तो टीएस ऑफ ओवरी को अवॉइड करना, बिकॉज बहुत ही लेंथी डायग्राम है, टाइम कंज्यूमिंग है, सो अवॉइड दैट. देन यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो पूछते हैं, वो पूछते हैं आपको अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. ये जो चार्ट है, डायग्राम वाला चार्ट, ये आपको लर्न करना है, और ऐसे ही सिमिलर चार्ट oogenesis का, एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये दो डायग्राम्स. फिर ये देखो फर्टिलाइजेशन, कैन यू सी, ये चार डायग्राम सीक्वेंस में उन्होंने दिए. दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग यू. एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन विद दोस फोर सीक्वेंशियल डायग्राम्स. एंड क्लीवेज का डायग्राम, क्लीवेज में वी हैव दो 6 डायग्राम्स जो मैंने ड्रॉ किया था सिखाते टाइम. और उसमें मोरियुला में मैंने आपको बोला था 16 सेल मास होगा, सेंटर में एक सेल, उसके पेरिफेरी में 6 सेल्स, और उसके पेरिफेरी में 9. 1 + 6 + 9, वही पैटर्न में ड्रॉ करना है, देन ओनली इट अपीयर्स लाइक मलबेरी. एंड गेस्टुलेशन का डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया है, वो वाला, ये उतना प्रॉपर डायग्राम नहीं है. रेस्ट पार्ट में से कोई डायग्राम एक्सपेक्टेड नहीं है. देन इसमें मेंडल में तो कोई डायग्राम है ही नहीं, दो डिफरेंट क्रॉसेस यू हैव टू डू. एंड क्रॉसेस के टाइम पे याद रखना, जितने भी गैमेट्स आप लिखते हो, गैमेट्स को सर्कल करना है. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सर्कल नहीं किया है, गैमेट्स हैव टू बी सर्कल्ड, वो इंपॉर्टेंट है. देखो ये चार्ट में सर्कल किया है बट आगे वाले में नहीं है, तो गैमेट पे सर्कल करना भूलना मत, नहीं तो मार्क्स कट होगा. यस, एंड देन जो चार्ट है उसमें कलर ब्लाइंडनेस का जो चार्ट है पूरा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये वाला. सो इसको पूरा चार्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है. ये जो है 3.10 एंड 3.11, ये दोनों चार्ट फॉर्म में है, यू नीड टू एक्सप्लेन. देन नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बेसिस में सीधा डीएनए का जो डायग्राम है, जिसमें या ये भी है न्यूक्लियोसोम वाला डायग्राम 4.5, न्यूक्लियोसोम का डायग्राम प्लस this replication, semi-conservative replication of DNA. So that is one diagram 4.8 which you need to do it. And okay, so that is your molecular basis का जो भी diagrams है वो. इसके बाद में या ओरिजिन इवोल्यूशन में तो कोई डायग्राम कुछ है ही नहीं, सो यू कैन जस्ट, ये था ऑब्वियसली, बट देन दिस पार्ट इज नाउ नॉन इवेल्युएटिव, सो यू डोंट नीड टू डू दैट, मिलर यूरे वाला. सो ये तो आप पूरा स्किप कर सकते हो. Okay, then again plant water relation में there is nothing to draw. Only the stomata वाला part that you need to practice. Move from
दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाली टेक्स्ट बैक क्वेश्चन आएगा या टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए उसी में से आएगा, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट इफ यू गो थ्रू यू विल रियलाइज कि ऐसा है ही नहीं. मेजोरिटी क्वेश्चंस हैव आस्क्ड समथिंग व्हिच इज नॉट गिवन बिहाइंड. प्लस ये टेक्स्ट बुक में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है सर्टेन चैप्टर्स. सो ऐसा कुछ नहीं है. डोंट रिलाई ऑन दैट. डोंट रिलाई. ओके, यहाँ पे यस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 8.3. सो पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है. उसके बाद में सेकंड डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, दैट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो एल्वियोला एंड ब्लड कैपिलरी. और जब ये डायग्राम ड्रॉ करते हो सी टू इट यू मेक स्क्वेमस एपिथेलियम एवरीवेयर. ब्लड कैपिलरी का एंडोथीलियम और एल्वियोलाई में स्क्वेमस एपिथेलियम, और वो भी एंडोथीलियम भी अल्टीमेटली तो स्क्वेमस ही है ड्रॉ करते टाइम. सो वो आपको याद रखना है. ये जो कर्व है ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, दिस यू हैव टू रिमेम्बर. कब वो राइट में शिफ्ट होगा, कब वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, उसका जो भी सिचुएशन है वो हमने डिस्कस किया हुआ. एंड सर्कुलेशन के अंदर डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ डायग्राम्स. WBC के टाइप, देन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जिसमें you will do 8.19, that is anterior or ventral view of heart. जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं फॉर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. और 8.20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. एंड 21 एज वेल कंडक्टिंग सिस्टम. देन सीधा आपका ECG वाला डायग्राम. ये जो है 8.26 नॉर्मल ECG, ये भी हमने ड्रॉ किया हुआ. Then control and coordination. Now control and coordination में you need to know about this diagram, that is polarization and depolarization along a nerve. ड्रॉ करने के लिए शायद ना भी पूछे, बट ये ड्रॉ करके आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं. या तो ये इनकम्प्लीट देंगे एंड दे विल आस्क यू टू कंप्लीट इट. So that is one diagram which you will remember. Second, ये वाला, that is the lateral view of brain. ये जो diagram है, ideally when they ask you about lateral view of brain, this is what you are supposed to draw. ये lateral view है. और फिर brain का और एक diagram जो है, that is sagittal section of the brain, where we see all internal parts. ये भी एक diagram है related to brain. Then TS of spinal cord, very important, 2 मार्क के लिए पूछते हैं. Sketch and label TS of spinal cord. रिफ्लेक्स आर्क तो नहीं, सॉरी, ये स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन है. यस, तो ये भी आपको करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो रिक्वायर. रिफ्लेक्स आर्क वाला डायग्राम नहीं है. आई और ईयर का, उसमें आई का डायग्राम, ईयर इज नॉट रिक्वायर्ड. फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हार्मोन एक्शन 9.23 एंड 24, दिस ऑल्सो यू नीड टू प्रिपेयर. एंड पिट्यूटरी का डायग्राम करना है, बट ऑब्वियसली नॉट दिस जो मैंने ड्रॉ किया था, सिंपलर वन. दिस इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. देन पिट्यूटरी के बाद यू हैव टू डू थायराइड का है दोनों डायग्राम, ए और बी. ए इज मॉर्फोलॉजी और बी इज हिस्टोलॉजी. बोथ डायग्राम यू विल डू. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दे हैव शोन क्यूबॉइडल सेल. सो वो क्यूबॉइडल सेल्स को याद रखना. दैट्स इट. बाकी कोई भी डायग्राम इसमें से रिक्वायर्ड नहीं.
हेल्थ एंड डिजीज में एक डायग्राम जो है वो एंटीबॉडी का है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. दिस इज वन विच यू नीड टू नो. सेकंड आपको डायग्राम जो करना है वो HIV का. Yeah, this one, 10.14, structure of HIV. So antibody and HIV. These are two diagrams which you will prepare from health and disease. यहाँ पे ये सब part में there is no diagram as such. And पीछे का पार्ट तो है ही नहीं, एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल इज डिलीटेड. मतलब उसमें आर्टिफिशियल बी हाइव का डायग्राम आता था, बट यू डोंट नीड टू डू दैट. दिस फर्मेंटर, ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, that can come for 2 marks. Or gobar gas, biogas plant. And biotechnology, yes. Now see, in biotech, this is one diagram which you need to do, 12.1, PCR का diagram. Step 1, Step 2, Step 3. ये as it is diagram पूछते हैं 3 marks के लिए draw करने को, 3 marks का diagram. So वो आपको learn करना है. दूसरा यहाँ पे आपको learn करना है this one, process of rDNA technology in diagrammatic form. What are the steps? वो जो question था, enlist various steps of rDNA technology. So these are the steps that you need to enlist. Okay, and then last वाले कोई 3 chapter में तो ऐसे कोई diagram है नहीं. So these are the important diagrams which you will prepare. और ये सब diagram आप GTB में से ही prepare करोगे. बिकॉज जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जीटीबी वाला डायग्राम आएगा, एनसीईआरटी वाला नहीं. नीट में दे विल गिव यू एनसीईआरटी वाला, बट यहाँ पे जीटीबी वाला. सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम जीटीबी ओनली. Okay, so this is how you are supposed to prepare your entire biology subject. And as I told you, if you focus well, if you prepare those topics, 55 marks out of 70. Very easy topics, nothing much to study. So पहले उसके ऊपर फोकस करो, and then you can go for those topics which are difficult one, जिसका overall weightage भी कम है. ज्यादा करना पड़ेगा और रिटर्न कम मिलेगा. Okay, so I hope everything is clear. All the best everyone, and do well first in your class prelims and then obviously in your board exams also. Okay, all the best everyone. Thank you.